With less than 100 days remaining for NEET UG 2024 and everyone must be working so hard, but at the same time कई स्टूडेंट्स का ऐसा हो रहा होगा कि एक सेल्फ डाउट आ रहा होगा मन में, ऐसा लग रहा हो कि यार टेस्ट तो दे रहे हैं पर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, पढ़ तो रहे हैं पर पढ़ा हुआ याद हो रहा है कि नहीं, भी वो भी एक डाउट है. सो इफ यू आर द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू एंड हियर आई विल बी शेयरिंग 10 important points that you can definitely implement to enhance your current preparation level. So before beginning, hi, this is Shraddha Sharupanda, currently an MBBS second year student at SCU Medical College and Hospital Cuttack. And starting with the video, let me remind you, this is not a video of how to crack NEET in 3 months if you are starting from zero or haven't started yet. Okay, so if you are like that, so no, this video is not for you. Let's start. Point number 1, active recall of NCERT, an ideal way to revise. By this time, I don't think I have to remind anyone of what is the importance of NCERT, because any NEET aspirant, any serious NEET aspirant watching it already knows it. Now NCERT तो पढ़ लिए ना, how to revise it? What is the the traditional way we are approaching for any kind of revision of revising any particular subject? First, we are reading that any particular chapter of that subject. Then we are solving the MCQ or PYQ or anything of that subject. So this is called as a passive way of revising. Okay. What if I tell you to reverse the process? It means first solve the MCQ, then go to the chapter, that particular chapter, and revise that. Now this is called as an active way of revising. सेंस भी करता है. आप जब एक चैप्टर पहले रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी से, यू आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस, यू आर स्पेंडिंग इक्वल टाइम इन ऑल द पॉइंट्स, बट इज इट करेक्ट थिंग टू डू? एक चैप्टर में कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से याद होगा, कई पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो आपको अच्छे से याद नहीं होगा. तो सारे पॉइंट्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करना, क्या ये सही बात है? तो ये ज़रूरी है, स्पेंड मोर टाइम, मोर एनर्जी ऑन दोज टॉपिक्स और दोज पॉइंट्स you are weaker at, that you are doing consistently wrong compared to that of those topics which you are doing right. So but how will you know that? कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाला चीज़ मेरा वीक है, ये वाला चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है? You can only do that by first solving the MCQ. First take any NCERT based MCQ or PYQ, take anything. First solve that particular chapter. करने के बाद analyze that MCQ, because analysis is very important, because that will only help you out in checking or in knowing कौन से पार्ट ऐसा है जो आपका वीक है, कौन से पार्ट ऐसा है जो आपका वीक नहीं है. Go and read that particular chapter from NCERT, because you will gradually come to know. अब जब पढ़ोगे आपको धीरे धीरे ऐसा लगना है, यार ये वाला चीज़ तो मुझे अच्छे से याद है, ये वाला चीज़ मेरा गलत हुआ था, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है. ठीक है, ये आपको अपने आप पता लगने लगेगा. So you can spend less time in reading a particular chapter, as well as your chapter will also get complete. पहले एक चैप्टर को टाइम हो गया, आप पढ़े होंगे, देन इमीडिएटली यू आर ओपनिंग अ चैप्टर एंड सॉल्विंग द एमसीक्यू फर्स्ट. योर ब्रेन स्टार्ट्स टू एक्सरसाइजिंग, यू हैव टू डिपेंड ऑन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर दैट. और देखा जाए तो नीट में भी वही हो रहा है ना. आप नीट के एक दिन पहले तो कभी भी पूरा एनसीईआरटी, पूरा सब कुछ तो पढ़ के नहीं जा पाओगे. यू हैव टू डिपेंड ऑन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो व्हाई नॉट नाउ? दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स. आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, मॉक गिविंग मॉक टेस्ट, it's very important to analyze them. Don't only give them. Identify your weak points, the questions you are making consistently wrong, the silly mistakes you are making. Then if that question or that topic is conceptual or fundamental, then immediately refer the book or go to the NCERT or go to that your notes, anything, and read that. If it is silly or factual question, then वहीं पर रट्टा मार लो. Don't just think, वहीं पर रट्टा मार लो, because that's more important. कि आपको वो question particularly याद रहे, वो कैसा याद रहा है वो मैटर नहीं करता. और फैक्चुअल में आप क्या ही समझोगे, वो तो यू हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, सो अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो रट्टा मार लो. इफ इट्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देन गो एंड रेफर द बुक. अगर बुक में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यू कैन डेफिनेटली रेफर एनी योर कोचिंग, यू कैन आस्क योर फैकल्टीज, और यूट्यूब तो है ही. चलो. Number 3 is solving PYQs frequently. Now, if there is one thing that I will recommend apart from reading NCERT for cracking NEET, is solving PYQs. You can never imagine of cracking an exam like NEET when not solving PYQ. Develop a habit of solving. एक तो PYQ solve करने के बहुत फायदे होते हैं. फर्स्ट तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहा है, आप MCQ तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, और वो भी वो MCQ प्रैक्टिस हो रहा है जो कि नीट में आया हुआ है. ठीक है, ऐसे वैसे MCQs नहीं. दूसरा, आप पेपर के लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हो रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी टेंड टू जनरली इग्नोर दैट पर्टिकुलर थिंग. आप कोई भी आप एक काम करो ना, 2 अलग अलग कोचिंग के क्वेश्चन पेपर उठा, क्वेश्चन सही भी होगा मोर और लेस. एक टॉपिक अगर पर्टिकुलर देखोगे तो, पर एक लैंग्वेज का एक डिफरेंस रहता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि नीट कैसे पेपर, एनटीए कैसे पेपर फॉर्म करता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स द पॉइंट नंबर 2.
पॉइंट नंबर 3, आप डेफिनेटली ये बात भी जान रहे हो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, because there is a rule called as an 80-20 rule, that is 80% of the questions come from 20% of the topics. That means those 20% topics hold special importance than the others, obviously. So आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से 20% टॉपिक्स है जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जब आप NCERT बेस्ड MCQ वगैरह बुक्स सॉल्व करते हो, दे आर डेफिनेटली ग्रेट बुक्स, बट वो क्या होता है ना, दे आर मेकिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT एंड MCQ. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग, यू आर हैविंग अ ग्रेट प्रैक्टिस विद दैट बुक्स, विद दोज बुक्स, बट इमेजिन आप हर एक लाइन का MCQ सॉल्व कर लो, आपको पता कैसे लगेगा कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है एज कम्पेयर टू कुछ और अलग टॉपिक्स. इससे आपका कोई टॉपिक वीक रह गया होगा, आप सोचो कि यार ये कहाँ ही आएगा एग्जाम में, इसको छोड़ ही देता हूँ, आप छोड़ दो, पर उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आया होगा. मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है. एनी फिजिक्स क्वेश्चन और एनी फिजिकल केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो मुझसे अगर सॉल्व नहीं होता, आई टेंड टू लीव देम. आई थिंक यार ये कहाँ ही आया होगा, देन आई थिंक यार देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आया होगा कि नहीं, वो आया था. ठीक है, सो खुद से कुछ इमेजिन मत करना, एटलीस्ट सॉल्व 10 years पेपर. Point number 4, increasing the frequency of giving mock test. Now, by this time, I don't think there is anyone left who have not started giving mock test. Coaching in which you have enrolled must have already started conducting the mock test. But is that sufficient? I think no. Okay, like कोचिंग तो हर 10 से 15 दिन में टेस्ट करा ही रही है ना, आप थोड़ा ज़्यादा दे दो खुद से. यू कैन गेट मेनी क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम मेनी टेलीग्राम चैनल्स इफ यू सर्च फॉर, एंड जस्ट टेक अ प्रिंट आउट एंड टेक एन OMR शीट एंड बैठ जाओ एग्जाम देने के लिए. एग्जाम देने का एक फायदा क्या है कि लाइक आप MCQ तो प्रैक्टिस ऐसे भी कर रहे हो, बट डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ गिविंग एग्जाम्स विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग MCQs इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितना, बट द फ्रीक्वेंसी यू सेट शुड बी डेफिनेटली मोर देन द करंट फ्रीक्वेंसी, एंड प्रोवाइडेड यू शुड obviously give the test according to your NEET exam time only, that is from 2 to 5:30, because the body will gradually get adapted to that and will also help you out in your NEET exam. This brings me to the point number 5, plan your day. Every successful person you hear, you listen, they love to plan their day, because planning will not just only help you in staying consistent towards your goal, but will also update you about your current life scenario or current preparation scenario. I've also read somewhere that planning helps you in decreasing the load on your brain, बिकॉज ऐसे ही बहुत से काम है आपको करने के लिए, बहुत से चीज़ें पढ़ने हैं, आप फालतू के लोड क्यों ले रहे हो, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ये सब आप दिमाग में रखोगे ना तो फिर अब भूल जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर लास्ट को FOMO होगा, आप विल प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. सो टू प्रिवेंट दैट, इट्स बेटर टू टेक अ पीस ऑफ पेपर, plan your day, set some targets, short term targets, long term targets, daily targets, weekly, monthly. अब yearly target करने मत बैठ जाना, ठीक है, so कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा. Provided you should definitely set the achievable targets. आप बहुत ज़्यादा high target set कर रहे हो, फिर वो achieve नहीं कर पा रहे हो, फिर ये उल्टा ही हो जाएगा, आपका अच्छा होने की जगह वो ज़्यादा गलत हो जाएगा फिर आपके साथ, like you will overburden yourself, so don't do that. Also remember to tick that each and every task after its completion, because that will like give a dopamine spike to complete the remaining task as well. Point number 6, read between the lines. Now ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ऐड इसलिए किया मैंने बिकॉज इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स स्पेशली फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, आप देखेंगे ना स्टेटमेंट बेस्ड MCQs, एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, ये कुछ ज्यादा आ रहा है, और नॉट जस्ट इन ओनली इन बायोलॉजी, इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. ओके, आप देखेंगे फिजिक्स में भी जहाँ सॉल्व क्वेश्चन ज्यादा आना चाहिए, वहाँ पे भी लाइक एसर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ रहा है. इन सब को टैकल करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT टेल समथिंग एंड यू कैन नॉट स्किप, बिकॉज आप एक बार देखेंगे आपको पढ़ा हुआ लगेगा, फिर आप अगर बाई चांस भूल भी गए ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन को पेपर देख रहे हैं, आपको ज्यादा याद भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शंस देख के आपको थोड़ा थोड़ा याद तो आ ही जाएगा, कुछ भी लाइक कैलकुलेटेड तुक्का आप मार के भी आ पाएंगे, ठीक है. नेवर स्किप एनी डायग्राम ऑफ NCERT, नेवर स्किप एनी साइंटिस्ट नेम ऑफ NCERT, नेवर स्किप एनी साइंटिफिक नेम, नेवर स्किप टॉपिक्स लाइक माइक्रोब्स इन फैमिली वेलफेयर, नेवर स्किप the acts that are passed by the government, especially the year part. Never skip the labeling part. Don't just see the diagram, उनका labeling भी देखना है, ठीक है, because कुछ भी आ सकता है, आप ये जरूरी है बार बार वो चीजें पढ़े. और point number 7, make a mistake notebook. This point was told to me by my mother during my last few months of preparation. मेरे साथ होता क्या था, I was giving mock test, I was analyzing it, जो गलती करता था मैं उसको फिर रिवाइज करता था, फिर भूल जाता था, ठीक है, और फिर वही गलती मेरा दोबारा हो जाता था. My mother suggested me that take a notebook and write all the questions that I am making wrong and write the answers of the questions as well and revise it. You can make mistake book of all the 3 subjects. Just write question you are consistently making wrong, then write the answer of that, and if it is a conceptual question you can also write the concept as a short summary.
below it. PYQ भी ऐड कर सकते हैं उसमें, बट मेक श्योर टू राइट द ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर PYQ, बिकॉज आप जब उसको रिवाइज करेंगे आपको पता होगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा फोकस करना है. मेरे जो नीट का जो स्कोर है उसमें आई विल से लाइक 20 to 30 मार्क्स तो मेरे मिस्टेक बुक से ही आया था, मेरा बढ़ा है उसमें से. मेकिंग मिस्टेक बुक ऑल्सो हेल्प्स यू आउट दैट यू विल बी हैविंग समथिंग टू रीड ऑन योर लास्ट डे और डे बिफोर नीट, बिकॉज अब सब कुछ तो नहीं पढ़ पाओगे ना नीट से एक दिन पहले. यू विल बी हैविंग समथिंग टू रीड फॉर्म ऑफ अ मिस्टेक बुक, but make sure to revise it at least once in a week. Coming to the point number 9, stick to a single source. Okay, now this point is very important because many students remain confused to whether to put their hands on any new resources or not. Never do that mistake. Stick to a single resource, whether it's a single book or single video resources, anything. Just stick to a particular resources that you are currently using. Don't look after like your friends or any colleagues that he is reading from that book, he is reading from that book. जो आप कर रहे हो आप उसी में रहो, आप उसी से ही follow करो, else you are gonna completely mess it up. Point number 9, avoid spending time in unnecessary things or unnecessary people. I don't think I have to tell much about this point because this is more of a like an eye opener than a point. We all know क्या ऐसा unnecessary चीजें हैं जिनमें हमारा ज़्यादा टाइम जाता है. मे बी मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, टीवी किसका होता है, और टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Find out those unnecessary things and gradually reduce the time spending on those things, because आप अगर एक बार में ही सब बंद कर दोगे ना, वो सही होने की जगह गलती हो जाएगा, आप ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे उसमें. Try to slowly reduce it. अगर आप 6 घंटे फोन चला रहे हो तो 5 घंटे में लाओ, फिर 4 घंटे, फिर 3 घंटे, धीरे धीरे करके ही सब होता है. पॉइंट नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन अ हेल्दी लाइफ. जो सारे 9 पॉइंट्स मैंने ऊपर बोले ना, दे ऑल आर यूजलेस इफ यू आर अनहेल्दी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ, बिकॉज यार एग्जाम्स है, ऑब्वियसली यू हैव टू, यू कांट नेग्लेक्ट योर हेल्थ. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड जस्ट दिन में 5 से 10 मिनट आप अपने हेल्थ को रूटीनली दीजिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट वी ऑल आर अनहेल्दी अकॉर्डिंग टू द WHO's definition of health. Forget. So these are the 10 most important ways that you can definitely implement to boost your current preparation level. If you stayed till here, there's one more important point you can definitely try it out. That is, try subscribing this channel and hitting the thumbs up button. We'll catch up in the next one. Bye.